میری طرف سے جتنے یہاں پر فادرز ہیں آپ سب کو ہیپی فادرز ڈے. آمین. آئے زوردار تعلیم جائیں گے. خدا نے ہمیں زمین پر بھی باپ کا رشتہ دیا ہے، اور یہ ایسا رشتہ ہے جو اپنے بچوں کے لیے جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں وہ مہیا کرنے کی کوشش کرتا ہے. آمین. تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں اپنے روحانی پتا کے لیے، روحانی باپ کے لیے، جو ہمارا خدا یہوہ پاک خدا ہے. اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارا خدا رحیم ہے، جس کی محبت لازوال ہے. آمین. خداوند کی محبت لازوال ہے، بے انتہا ہے. وہ رحیم ہے، وہ مہربان ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں. آمین. اس جیسا کوئی بھی نہیں. آئے خداوند کے کلام اقدس میں سے پڑھیں گے. یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 49واں باب لکھا ہے خدا کے کلام اقدس میں. دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے. ہاللیلویا. یہ کتنی بڑی بات ہے. خدا ہمیں نام بنام جانتے ہیں. میرے عزیزو، کتنی مبارک بات ہے. یہ خدا کی محبت ہے، یہ خدا کی محبت ہے. اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، اور لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے بخش دیا، قربان کر دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ خدا کی محبت ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس لیے قربان کیا کہ اس کی کامل قربانی سے ہم اس کے حضور میں آ سکیں. ہاللیلویا. کیونکہ باغ عدن میں جو نافرمانی ہوئی تھی، اس وجہ سے ہم خدا کے حضور نہیں آ سکتے تھے. اور دیکھیں خدا کی لازوال محبت ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان خدا کی قربت میں رہے، خدا کی حضوری میں رہے، خدا کے قدموں میں رہے، خدا کے چرنوں میں رہے. اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دیا تاکہ ہم خدا کی حضوری میں آ سکیں. اور کتنی مبارک بات ہے، خداوند یسوع المسیح نے ہمیں دعا کرنے کیا سکھائی. کیسے؟ جب ہم مقدس متی کی انجیل اس کا 6واں باب اس کی 9ویں آیت پڑھیں تو کیا لکھا ہے؟ خدا نے ہمیں یہ سکھایا کہ کیا کہنا ہے، آئے ہمارے باپ. جیسے وہ باپ کہہ کر پکارتے، اور جیسے باپ اپنے بیٹے کو پکارتے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو. وہ باپ اور بیٹا ہمیں بھی اپنے فضل میں شامل کرتے ہیں. ہاللیلویا. خدا نے ہم سے محبت کی، لازوال محبت. خدا جو قہر کرنے میں دھیما ہے، خدا جو شفقت میں غنی خدا ہے، وہ ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے. خدا ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے. اور یہ خدا کی محبت ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کیا، اور بیٹے نے ہمیں یہ دعا کرنا سکھائی کہ ہم خدا کو باپ کہہ کر پکار سکے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون خدا کے بیٹے ہیں، کون خدا کے بیٹے ہیں. اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. جو خدا کی مرضی پر چلتے ہیں، جو خدا کی فرما برداری کرتے ہیں، جو خدا کے حضور میں عاجز ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے حضور میں جھکا دیتے ہیں،
जो खुदा की मर्जी को आमीन कहकर खुदा के हुजूर में अपने आप को पेश कर देते हैं, खुदा के ताबे कर देते हैं, वही क्या है? खुदा के बेटे हैं। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो। हमें गुलामी की रूह नहीं मिली बल्कि ले पालक होने की रूह मिली। ले पालक कहते हैं अडॉप्ट करना, ले लेना, कीमत देकर खरीदा हुआ, जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं, अब्बा। हालेलुया। वो हमारा खुदावंद जिसे हम अब्बा या बाप कहकर पुकारते हैं, किस वजह से? खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम खुदावंद को बाप कहकर पुकारते हैं। जब हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में गलतियों उसका 4वां बाब 4 आयत पढ़े लिखे, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया, ये खुदा की मोहब्बत थी। एक वक्त था कि बैलों और बछड़ों का खून इसलिए बहाया जाता ताकि साल में एक बार खुदा की हजूरी में आ सके। एक साल कितना मुश्किल है। अगर हमारा जिस्मानी बाप हमसे दूर हो तो एक साल में सिर्फ एक ही दिन हो तो कितना मुश्किल होगा। हम बड़ी मुश्किल से हम कहेंगे ये दिन लंबा हो जाए, क्योंकि हमने किससे मुलाकात करनी है? अपने बाप से। साल में एक दिन होता था कफारे का दिन, जब खुदा के लोग खुदा के हजूर में आते। खुदा ने क्या किया? उस एक दिन को हर दिन में तब्दील किया। किस में तब्दील किया? हर एक दिन में। और लिखा कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। जब कोई गुनाह करता है उस पर शरीयत लागू हो जाती है। और लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और लिखा है कि तो उसने शरीयत के मातहतों को मुंह लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालिक होने का दर्जा दिया। और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा। खुदा ने अपने बेटे के खून के वसीला से हमें पाक किया। और खुदा में यीशु के रूह जो हमारे अंदर है उसके वसीला से अब हमें दिलेरी है कि हम खुदा को अब्बा यानी बाप कहकर पुकारते हैं। खुदा की कैसी मोहब्बत है कि खुदा ने लिखेंगे इससे पेशतर कि हम गुनाह की हालत में थे तो मसीह खुदा हमारे लिए हुआ, हमारे लिए कुर्बान हुआ, ताकि हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हों और हर वक्त खुदा की हजूरी में आ सके। और मेरे अजीजों, खुदा नहायत मेहरबान है, खुदावंद नहायत रहीम है, खुदावंद हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। जब हम 103 ज़बूर पढ़ते हैं और उसकी 13वीं आयत और लिखा है जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। खुदा हम पर तरस खाता है। और तरस की एक मिसाल है, खुदा ने यूना नबी को भेजा था कहां पर? नैनवा में। कहां चला गया? तरसीस में। हम खुदा की हजूरी से बचकर कहां जाए? क्या हम खुदा से भाग सकते हैं? खुदा से दूर जा सकते हैं? मुकद्दस दाऊद क्या कहते हैं? जब हम 139 ज़बूर पढ़ते हैं उसकी साथ में लिखा है मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं या तेरी हजूरी से किधर भागूं? आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, अगर पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है, अगर मैं सुबह के पर लगाकर समुद्र की इंतहा में बसूं तो तू वहां भी है और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालेगा। वो जहाज में बैठकर
नैनवा की बजाय किसी और जगह जा रहा है, लेकिन खुदा की हजूरी से हम बच नहीं सकते। अब खुदा ने उसको मारा नहीं है, खुदा ने उस पर तरस खाया, एक मछली को भेजा ताकि उसे सिखाए कि मैं जिस काम के लिए तुझे भेजता हूं जा। लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि खुदा चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। अब खुदा चाहता है कि वो लोग बचाए जाएं, वो लोग क्या हो, बचाए जाएं। और हम देखते हैं कि खुदा ने जब मछली के जरिए उसकी जिंदगी में काम किया, एक बड़ी मछली के जरिए, तो वो जब गया जाके उसने मनादी की। अब मनादी की तो खुदा ने क्या किया, नैनवा पर तरस खाया। खुदा नहीं चाहता कि किसी की हलाकत हो, बल्कि खुदा चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। तो खुदा ने क्या किया, खुदा ने जब उनको माफ कर दिया तो आगे से फिर क्या कहता है, यूना मैं जानता हूं कि तू क्या है, तू रहीम खुदा है। जब हम खुदा के कलाम एक दूसरे से पढ़ते हैं, यूना नबी का सीफा उसका 4था बाब खुदा के कलाम में से उसकी दूसरी है, और उसने खुदाम से यूं दुआ की कि आए खुदाम, जब मैं अपने वतन में ही था और तरसीस को भागने वाला था, तो क्या मैंने यही ना कहा था, मैं जानता था कि तू रहीम और करीम खुदा है, जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। वो कहता है खुदा मुझे पता था। खुदा ने फरमाया कि तू एक छोटी सी बेल को लेकर नाराज होता है, जिसके लिए तूने कोई मेहनत नहीं की, ना उसे उगाया। लेकिन वहां पर नैनवा में ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि उनके मुआशी कितने हैं। आज तो बैंक बैलेंस है लोगों के, बैंक बैलेंस से पता चल जाता है जी इतने मिलियन डॉलर इसकी प्रॉपर्टी है, इतने मिलियन। उस वक्त मुआशी ऐसा ही है, उस वक्त मुआशी होते थे, जानवर जिनके पास होते थे उनसे पता चलता था कि ये कितना शख्स मालदार। और लिखा है, खुदा फरमाते हैं कि ऐसे वहां पर लोग हैं जिनको पता ही नहीं है उनकी प्रॉपर्टी कितनी ज्यादा, तो मैं उनको कैसे मार सकता। मेरे अज़ीज़ों, खुदा रहीम है, रहम करने वाला है, तरस खाने वाला है। खुदा ने बनी इसराइल ने जब पुकारा, खुदा के हुजूर में गिड़गिड़ाए, तो खुदा ने फरमाया कि मैं उतरा हूं ताकि अपने लोगों को फिरौन की गुलामी से आजाद। जब खुदा ने अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाला, समुद्र को 2 हिस्सों में बांटना, ये खुदा की शफ़क़त है। खुदा ने रास्ता दे दिया। बियाबान में वो कहते हैं हाय वो हंडिया, हाय वो अदरक, हाय वो लहसुन, हाय वो गोश्त। खुदा ने उनको गोश्त मुहैया किया, खुदा ने उनको मन खुराक मुहैया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा मुहैया करने वाला खुदा है। खुदा ने, जब हम मुक़द्दस मत्ती की इंजील में पढ़े तो लिखा है कि तुम जिस्मानी माँ बाप होते हुए अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो क्या तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें अच्छी चीजें नहीं देगा? वो देगा। हालेलुया। और खुदा की शफ़क़त की एक कहानी मुक़द्दस लूका के इंजील उसके 15वें बाब में है। एक बाप जिसके कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। कितने बेटे? 2 बेटे। और वो अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करता था। बेटा है, वो क्या करता है? वो क्या करता है कि वो अपना तमाम मालो मता लेकर क्या चला जाता है? दूर दराज मुल्क में चला गया। अब वो वहां पर क्या उठा रहा है? दुख उठा रहा है, क्योंकि वहां पर काल पड़ गया उस मुल्क में। और हम देखते हैं कि वहां पर उसे एक नौकरी मिली सूअर चराने की। सूअर वो चराता था, और सूअर चराने से उसे फलियां मिली। क्या मिली? खाने को फलियां। अब फलियां खा रहा है, एकदम से उसे होश आती है
लिखे वहां पर उसे होश आई कि मेरे बाप के घर में जो नौकर हैं, जो मुलाजिम हैं, वो भी अच्छा खाना खाते हैं। तो क्यों ना हो, ऐसा हो कि मैं अपने बाप के घर में जाऊं, कहूं कि बाप अब मैं इस लायक नहीं कि फिर से तेरा बेटा बन सकूं, मुझे अपना नौकर ही बना ले। इधर तो मैं फलियां खाता हूं, कम से कम वहां पर जाकर अपने बाप के घर में अच्छा खाना तो खा सकूंगा। सो मेरे अजीजों, जैसे वो जा रहे हैं, अब बाप अपनी बाहें फैलाए फैलाए। हालेलुया, ये खुदा की शफ़क़त है। जब हम खुदावन के फजल के तख्त के सामने से सरकशी कर जाते हैं, खुदा से दूर चले जाते हैं, तो खुदा इंतजार करता है। और जैसे ही दिखे कि वो अपने बाप के घर की तरफ आ रहा है, बाप दूर से देखकर अपनी बाहें फैलाता है कि मेरा बेटा जो क्या हो गया था, जो खो गया था, क्या लिखा है, मेरा बेटा जो खो गया था, जो मर गया था, अब जिंदा हुआ है। वो क्या कहता है कि मेरा बेटा जो मर गया था अब जिंदा हुआ है। मौत किसकी अलामत है? गुनाह की। ये गुनाह में चला गया था, इसने बदचली की जिंदगी गुजारी, ये मेरे हजूर से चला गया। तो मेरे अजीजों, जैसे वो वापस आता है, ये खुदा की शफ़क़त है। लिखे कि खुदा नेकों और बदों दोनों पर अपने सूरज को चमकाता है, और खुदा दोनों पर अपने आसमान को बरसाता है। खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करता है। लिखे कि वो अपनी मुट्ठी को खोलता है और हर एक जानदार को खुराक मुहैया करता है। खुदा की आंख इतनी पाक है कि बदी को देख नहीं सकती। सो खुदा चाहता है कि हम क्या हों? पाक हों, ताकि हम भी खुदा के हजूर आ सके। जब हम पतरस के पहले खत उसका पहला बाब और उसकी 16वीं आयत पढ़े, खुदा के कलाम में इसमें लिखा है, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। खुदा चाहता है कि हम पाक हों, क्योंकि खुदा पाक है। खुदा मोहब्बत है। खुदा क्या है? खुदा मोहब्बत है। खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करता है। जब हम यूहन्ना का पहला खत खुदा के कलाम में से उसका 4वां बाब और उसकी 8वीं आयत पढ़े, लिखा है, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता। जिसमें मोहब्बत नहीं उसमें खुदा भी नहीं। अगर हम में मोहब्बत नहीं तो हम में खुदा भी नहीं। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। सो मेरे अजीजों, खुदा मोहब्बत है, खुदा पाक है। खुदा चाहता है कि हम भी पाक हों। खुदा मोहब्बत है। खुदा चाहता है कि हम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें। खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि खुदा ने अपने बेटी को हमारे लिए बख्श दिया, ताकि हमारा खून आलूदा हो चुका था, उसका कफारा खून से दिया जाना था, किसी और चीज से नहीं। खून का कफारा खून से ही दिया जाना था। इसलिए खुदा ने अपने बेटे के खून के वसीला से हमारा कफारा देकर हमें क्या बना दिया? नई मखलूक। जब हम खुदा यीशु के लहू से धुल जाते हैं तो हम नई मखलूक हो जाते हैं। फिर हम खुदा के लोग बन जाते हैं। अब हम खुदा के लोग हैं। अब हम खुदा का खानदान हैं। कैसे? खुदा की मोहब्बत के वसीला से। खुदा ने हमसे मोहब्बत की है, और ऐसी मोहब्बत कि वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता, कभी यतीम नहीं छोड़ता। और हमारा भरोसा जब खुदा पर होता है तो खुदा हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। मेरे अजीजों, खुदा के हजूर में हम कैसे आ सकते हैं? कैसे हम उसके हजूर में आकर उसको बाप कह सकते हैं? यूहन्ना की अंजील में उसका जब हम 14वां बाब और उसकी 6वीं आयत पढ़े तो लिखा है, यीशु ने उससे कहा, राह
اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ میرے عزیزوں، خداوند یسوع المسیح کے بغیر ہم باپ کے پاس نہیں جا سکتے۔ لکھا ہے کہ خداوند نے فرمایا میں اور باپ ایک ہیں۔ کیا ہے؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ باپ کو دیکھنے کے لیے ہمیں راہ، حق اور زندگی کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ میرے عزیزوں، زندگی میں اگر اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں تو خدا کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کریں۔ یہ کچھ چھوٹی سی بات نہیں ہے خدا کو باپ کہنا۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہم خدا کو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں، اور وہ ایسا باپ ہے جو نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، اور وہ رحم کرنے میں غنی ہے۔ اس کی شفقت لازوال ہے، اس کی محبت لازوال ہے، اور اس کی محبت کا انت نہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جیسے ابھی ہم پڑھے تھے، خدا کی یہ کتنی عظیم ہم سے محبت ہے کہ اس نے اپنی ہتھیلی، یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہے، اس پر ہماری کیا ہے جو شبیہ ہے کھود رکھی ہے، اور خدا ہمیں جانتا ہے۔ خدا ہماری ہلاکت نہیں چاہتا ہے۔ میرے عزیزوں، خدا نے اپنے زور بازو سے دکھایا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا قادر مطلق ہے۔ قادر مطلق کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز پر خدا کی حاکمیت ہے۔ آسمان زمین بنانے والا، ہر چیز کا بنانے والا خدا ہے، اور اس ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، خدا کی کنٹرول میں ہے۔ سو ہم اس کو ابا کہتے ہیں۔ لکھے کہ دنیا کے معبود محض بت ہیں جو نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہماری دعا کو سنتا ہے، ہماری فریاد پر کان لگاتا ہے۔ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ ہمیں صرف بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ ہاللیلویا! خدا کی یہ مرضی ہے۔ آپ مصیبت میں ہیں، آپ دکھ میں ہیں، آپ پریشانی میں ہیں، آپ کی زندگی میں مصیبت ہے، تو لکھا ہے خدا کے کلام میں تم کیا کرو؟ شکر گزاری کرو۔ لکھا ہے ہر ایک بات میں خدا کی شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں خدا کی یہی مرضی ہے۔ کس کی مرضی ہے؟ خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم ہر وقت اس کی کیا کریں؟ شکر گزاری کریں۔ سو میرے عزیزوں، ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارا آسمانی باپ ایسا یہوہ پاک خدا ہے جو ہمارے ساتھ ہے، جو ہماری جنگ لڑتا ہے۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ آئے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔